हेलो एवरीवन, दिस इज सीए प्राजक्ता मुंडे। होप आप सब लोगों की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही हैं फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। सो आई हैव ऑलरेडी रिलीज्ड अ वीडियो रिलेटिंग टू कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स रेट्स कि किसी भी एसएससी की एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इनकम कैसे डिटरमाइन करी जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, सो हाउ विल यू कैलकुलेट इट्स इनकम, and second thing, how will you calculate the tax? So depending on the case of the person कि अगर वो individual है, HUF है, AOP है, कंपनी है, फर्म है, LLP whatever, उसका जो टैक्स रेट होता है, सरचार्ज रेट होता है, वो वैरी करता है, राइट? सो वी हैव डिस्कस्ड दैट इंडिविजुअल्स में क्या टैक्स रेट रहेगा, एज के बेसिस पर, रेसिडेंस स्टेटस के बेसिस पर, एक्सेट्रा, एंड बेसिस दैट कंपनीज के केसेस में वी हैव डिस्कस्ड द टैक्स रेट्स. But I had mentioned that I will be releasing a separate video covering only the taxation of companies, because for CA final students, taxation of companies is a very important topic. And from the examination point of view, अगर मैं बात करूं तो आपको जो first question आएगा, compulsory question आएगा, that will be based on taxation of companies itself. So it is very important to keep in mind that how do you calculate the tax of a company, and accordingly what other points are to be kept in mind in order to calculate the tax correctly. So let's understand from the taxation perspective, what are the different classifications of companies given in the Income Tax Act. So classes of companies: domestic company or foreign company. So the company can either be a domestic or a foreign company. So when we say a domestic company will be an Indian company. So any company which is an Indian company will be a domestic company. And any other company which has made arrangements for declaring and paying for declaring and paying within India dividend out of the income which is chargeable to tax in India. So if there is an income chargeable to tax in India and the company is declaring or paying any dividend, it has made all the arrangements to do it in India, like which arrangements: the share registered is maintained regularly at its principal place of business. The general meeting for passing the accounts in which the dividend is declared will be held at the place within India, and the dividends which are declared will be payable in India. So if these conditions are fulfilled, then it is said to be a domestic company. So, and again, an Indian company will be a domestic company, or any company which has made these arrangements. Apart from that, a company which is not a domestic company is a foreign company. Simple. तो अगर domestic है तो ये conditions fulfill करनी है, otherwise वो क्या हो जाएगी, foreign company हो जाएगी. So basis on, if it is a domestic company, the tax rate is 30% or 25% basis on the turnover of that particular company. So if the turnover of, if we say 21-22 is less than or equal to 400 crores, the tax rate shall be 25%. Otherwise, the general rate is 30%. Foreign company, the general rate is 40%. However, there are certain royalty incomes that we'll be discussing that are taxed at 50%. But as of now, all the agreement dates and all of that particular income are not now much in operation. So based on that, this rate does not form much of the importance, but we should be aware of this fact. So 40% is the rate for foreign companies. When we talk about domestic companies, there are two different optional regimes which we will be discussing in detail in today's lecture. 115 BAA and BAB, जिसमें अलग rates दे रखे हैं, that is applied in the taxability. So ideally general rates यही रहेंगी domestic or foreign companies की, right? Now when we talk about company, domestic company, further it is classified as a closely and widely held company. Now why again this is important? Because there are certain sections which are applicable only on a closely held company. So for example, if I say 222E, कि डीम्ड डिविडेंड अगर आपने शेयर होल्डर को लोन दिया है and the shareholder is having a specific percentage of interest in that particular company, the loan shall be treated as a deemed dividend in the hands of that particular shareholder. Now this is applicable only in the case of closely held companies. So there are various different sections in the income tax which are applicable, maybe relaxation, maybe taxability, applicable only on the closely held company. So this is important to be kept in mind कि अगर कंपनी डोमेस्टिक है तो भी अपने को ध्यान रखना है कि वो क्लोजली हेल्ड कंपनी में आएगी या फिर वाइडली हेल्ड कंपनी में आएगी. So these are the basic classifications. Now we discuss the tax rates. So if I say tax rates, अगर हम डोमेस्टिक की बात करते हैं
डोमेस्टिक में टैक्स रेट विल बी वैसे 30% बट 25% बेसिस द टर्नओवर, एंड फॉरेन में आपका टैक्स रेट होता है 40%, है ना। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सरचार्ज, सरचार्ज की जो लिमिट्स हैं वो कॉमन है इन द सेंस अप टू 1 करोड़ देर इज नो सरचार्ज, एग्जैक्ट 1 करोड़ पे कोई सरचार्ज नहीं है। मोर देन 1 करोड़ बट लेस देन और इक्वल टू 10 करोड़ अगर है, या more than 10 crores है, so if the company is a domestic company and if the company is a foreign company, if it is a domestic company आपका जो rate of surcharge रहेगा that will be 7%, and more than 10 crore की अगर income है तो 12%, and अगर foreign company है तो 1 करोड़ से ज्यादा 10 करोड़ तक 2%, and अगर more than 10 crore है तो 5%, cess will be applicable at the rate of 4% whenever you are calculating tax. So even if it is a डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनी, आपको टैक्स जो है वो पे सेस जो है वो पे करना ही पड़ेगा। सो दीज आर द जनरल रेट्स ऑफ टैक्सेशन इन केस ऑफ अ कंपनी। whenever you are calculating income of any company you have to keep in mind. Now when we talk about a company assessment, कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। कंपनी का असेसमेंट या तो रेगुलर प्रोविजंस के अकॉर्डिंग होगा या फिर मैट के बेसिस पर अप्लीकेबल हो सकता है। Now when we talk about regular provisions, I mean that you are not opting for the optional regimes. तो अभी के लिए एक सेकंड के लिए 115 BAA BAB ये दो कंसेशनल रेट्स हैं जो दिए गए हैं कंपनीज को, विच आर ऑप्शनल। सो इसको 2 सेकंड के लिए साइड में रखते हैं। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द रेगुलर प्रोविजंस, दैट इज अगर कोई कंपनी 25 या 30% के ऊपर है तो हाउ टू कैलकुलेट द टैक्स। नाउ what happened, a lot of cases it was observed that the companies are having good amounts of book profits but they are not calculating or they are claiming certain benefits or deductions in the income tax provisions, and thus they are not having any taxable income. तो इनकी इनकम तो हो रही है, ऐसा नहीं कि इनको लॉस हो रहा है या इनको प्रॉब्लम हो रही है, ये पैसा कमा नहीं पा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इनका जो अमाउंट है, इनकम है, वो पर्टिकुलर इनकम इज they may be claiming some kind of benefits और डिडक्शंस इन देयर ATI AIB एक्सेट्रा, और उनकी जो इनकम है वो जीरो हो रही है। ऐसे कंपनीज के ऊपर टैक्स लगाने के लिए सरकार ने बोला हम मैट लेके आएंगे, विच इज अ मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स विच इज एप्लीकेबल ऑन द बुक प्रॉफिट ऑफ दैट कंपनी, विच इज कंप्यूटेड एज पर द कंपनीज एक्ट आफ्टर डूइंग सर्टन एडजस्टमेंट। सो आपको स्पेसिफिकली सेक्शन 115 JB और उसके आगे रिलेटेड जो सेक्शंस हैं वो मैट के लिए इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो मैट इज बेसिकली मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। तो अगर सपोज किसी कंपनी की टैक्सेबल इनकम जीरो है तो हो सकता है कि उसको टैक्स बिल्कुल भी नहीं आ रहा हो, बिकॉज टैक्सेबल इनकम इज जीरो, तो उसको कोई टैक्स नहीं आ रहा। लेकिन अगर उसके बुक्स में प्रॉफिट है, अगर उसके बुक्स में प्रॉफिट है, then after considering the deductions and after considering the adjustment as given in MAT computation, आपने अगर suppose tax निकाला as per the book profit, let's say 45,000, so whichever is higher is required to be paid, you will have to pay tax amounting to 45,000। आ रही है बात समझ में? So that is what is to be considered taxable income अगर जीरो हो गई तो अगर आपका मैट ज्यादा है तो मैट देना है। So basically regular tax और मैट whichever is higher has to be paid. Now MAT कैसे कैलकुलेट होता है, उसके क्या क्या कंडीशंस है, क्या क्या मतलब पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होते हैं, दैट विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट पार्ट। सो असेसमेंट ऑफ कंपनीज के मैं आज 2 लेक्चर्स दे रही हूँ। फर्स्ट विल बी द जनरल रेट कंसिडरिंग द ऑप्शनल रेजीम, कि क्या रेट ऑफ टैक्स हो चुका है अब कंपनीज का as per income tax provision, and the second part we will be covering only the adjustments that are relevant in MAT। मैट का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। तो अगर मैट ज्यादा है तो मैट देना है, देन द डिफरेंशियल क्रेडिट एंड ऑल एडजस्टमेंट कब मिलता है, क्रेडिट कैसे मिलता है, कैसे एडजस्ट होगा, ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में मैट को पूरा डिटेल्ड इन डेप्थ स्टडी में करेंगे। सो फर्स्ट थिंग ये समझो, कंपनी का क्वेश्चन अगर आया है तो पहले तो ये चेक कर लो कि वो ऑप्शनल रेजिम में जा रही है कि नहीं। अगर नहीं जा रही है, नॉर्मल है, तो नॉर्मल प्लस मैट दोनों कंप्यूट होगा, जो ज्यादा है वो पे करना पड़ेगा। अगर पुराना क्रेडिट है तो यूटिलाइज कब कर सकते हैं कब नहीं, वो मैं आपको आगे बताती हूँ मैट के साथ नेक्स्ट लेक्चर। बट दिस इज द जनरल प्रोविजन। नाउ देयर आर टू डिफरेंट ऑप्शनल रेजिम्स that have been introduced by the Income Tax Act in like past 2 to 3 years ago. 115BAA and 115BAB. BAB is giving having a tax rate of 15%, and BAA is having a tax rate of 22%.
सो बेसिकली व्हाट आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन इज कि ये दो ऑप्शनल रेजिम्स है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर सपोज बीए बी में 22 और 15% का टैक्स है एज अपोज टू 25 और 30%, ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति क्यों ही नॉर्मल में जाएगा? सिंपल सा लॉजिक है, जो हमारा इंडिविजुअल्स में होता है, मतलब है बीएससी में, वही लॉजिक यहाँ पर भी है कि आपको अगर हम टैक्स का रेट कम करके दे रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? काफी सारे डिडक्शंस जो है वो आपके ब्लॉक हो जाएंगे, डिडक्शंस विल बी ब्लॉक्ड, है ना? तो 115 BAA BAB अगर आप ऑप्ट करते हो तो हाँ, हम आपका टैक्स रेट कम कर रहे हैं एज पर द रेगुलर प्रोविजंस, लेकिन अ लॉट ऑफ डिडक्शंस व्हिच यू मे क्लेम इन द ओल्ड रेजिम विल बी नाउ ब्लॉक्ड। सो कंपनी हैज टू एनालाइज कि उसके लिए क्या बेनिफिशियल सिचुएशन है। अगर उसको डिडक्शंस लेके ज्यादा टैक्स रेट हो तो भी फायदा हो रहा है, जैसे हो सकता है कि आपका कोई फिगर है लेट्स से 4,50,000 एंड इसके ऊपर आपने पूरा 1,50,000 का डिडक्शन ले लिया, तो आपका बचता है 3 लाख रुपए। तो अब ये 3 लाख पर आपने आपके नॉर्मल 30% से टैक्स लगाया और उधर वो डिडक्शन अलाउबल नहीं है मान लो, तो इधर ये 4.5 लाख पे आपको 15% लग रहा है। देर इज अ पॉसिबिलिटी, वे तो मैंने रैंडम फिगर्स लिए हैं, लेट्स सी इसमें क्या कंक्लूजन आता है, बट देर इज अ पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पर आपको टैक्स देना पड़ रहा है 90,000, और अगर आप ऑप्शनल रेजीम में जाते हो, अगर आप ऑप्शनल रेजीम में जाते हो तो आपको टैक्स लग रहा है 67। तो ठीक है, यहाँ पर बेनिफिशियल है। लेकिन अगर कभी उल्टा होता है तो देन यू कैन डिसाइड कि आपके लिए जो बेनिफिशियल है, एंड फिर वो एक बार ऑप्ट करके आपको हर साल ऑप्ट करना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू बी केप्ट इन माइंड। कंडीशंस हम अभी डिस्कस करेंगे, बट द पॉइंट इज कि इफ यू आर ऑप्टिंग, then accordingly you will have to compare what is beneficial, and accordingly you have to give a decision to the assessee. Now when you talk about getting the benefit of optional regime, obviously there are certain conditions which are to be fulfilled ताकि आपको ये benefits मिल पाए। So let us discuss what are the conditions to be fulfilled if you are exercising either BAA or BAB. So BAA is basically a general section for domestic companies, 22%। फर्दर इन दोनों ही केसेस में एक 10% का मैंडेटरी सरचार्ज होता है। तो अगर 22% वाले की बात करूं तो उस पर 10% का सरचार्ज और सेस आपका जुड़ने के बाद टोटल रेट हो जाता है 25.168। एंड इन केस ऑफ रेगुलर रेजिम सरचार्ज डिपेंड्स ऑन द इनकम। तो अगर 25% है और अगर आपका सरचार्ज नहीं है तो सीधे 26% पे आता है। ऐसा कोई बहुत डिफरेंस नहीं है ना, यू कैन डिसाइड कि डिडक्शंस फॉरगो करके भी कितना ही फायदा हो रहा है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। चलो, नाउ लेट अस डिस्कस 115 BAA एंड BAB। फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट BAA। BAA बोलता है कि एनी डोमेस्टिक कंपनी इफ इट वांट्स टू क्लेम BAA इट कैन एंटर इनटू, इसकी कोई स्टार्ट एंड डेट नहीं है। तो आपको पिछले 4 सालों से तो आप रेगुलर प्रोविजंस में भर रहे हो रिटर्न, लेकिन अभी इस साल का रिटर्न जब आप फाइल करने बैठे आपको लगा कि यार मैं क्यों फालतू पुराने में भर रहा हूँ, मुझे टैक्स ज्यादा लग रहा है, लेट्स ऑप्ट फॉर BAA, यू कैन डू इट। सो इट कैन बी एनी डोमेस्टिक कंपनी, इट मे और मे नॉट बी engaged into मैन्युफैक्चरिंग, इट मे बी engaged in trading, whatever। डोमेस्टिक कंपनी रेट ऑफ टैक्स आपको दिया हुआ है, सो मैंने बताया 22% प्लस 10% प्लस 4%। सो दिस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम, दिस इज अ मैंडेटरी सरचार्ज, ठीक है। जैसे उसमें हमने पढ़ा ना 1 करोड़ के ऊपर है तो ही सरचार्ज लगेगा, वैसा कुछ यहाँ पर नहीं है। MAT shall not be applicable and the rate of tax shall be applicable on the incomes subject to the provisions of chapter 12। तो आपके जो स्पेशल इनकम्स हैं कैपिटल गेन वगैरह के, वो एज इट इज ही रेट पे लगेंगे। बाकी जो अदर इनकम है, जो नॉर्मल इनकम है, उसके ऊपर टैक्स रेट कितना हो जाएगा? 25.168%। नाउ let us talk the basics about BAB. BAB is applicable for manufacturing entities specifically, and they have given certain dates कि कब तक आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम पूरा हो जाना चाहिए ताकि आप BAB का बेनिफिट ले पाओ। सो रेट ऑफ टैक्सेस 10%, सरचार्ज जोड़ के सेस जोड़ के 17.16 आता है। इन केस ऑफ दिस द रेट ऑफ टैक्स इज एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम डिराइव्ड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन। इसके अलावा अगर कोई और जगह से इनकम आ रही है, जैसे कि आपका कुछ लेट से अदर सोर्सेज वगैरह की इनकम है, वो आपका 22% से टैक्सेबल होगा। सो एनी अदर इनकम, रेट ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम विच इज नो स्पेसिफिक रेट ऑफ टैक्स हैज बीन प्रोवाइडेड, तो आपको 22% आपको पे करना है। इफ सच इनकम इज नाइदर डिराइव्ड फ्रॉम
nor is incidental to manufacturing or production of that article. तो आपको उसके ऊपर 22% से टैक्स देना है, प्लस इसके ऊपर कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो एग्जाम्पल, अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, आपको उसके ऊपर कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। जो इनकम है एज इट इज टैक्सेबल होगी, और वो भी 22 पे होगी, 15% पर नहीं होगी। रेट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन derived from a capital asset on which no depreciation is allowable. If depreciation is not allowable, it will become a normal asset. So applicable rate will become 25.16 at any other income वाला रेट यहाँ पर भी लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप डिडक्शन ले सकते हो, बिकॉज आइडियली कैपिटल गेन निकालना है, तो आपको सेल तो में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो माइनस करनी ही पड़ेगी। गेटिंग द पॉइंट? सो दिस इज व्हाट इज टू बी केप्ट इन माइंड। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट BAA is a quite easy section, comparatively easy section। अगर आप BAB में नहीं जा पा रहे हो किसी वजह से, तो आप BAA में जा सकते हो। अगेन यहाँ पर भी वही वाला कंडीशन है कि मैंडेटरी सरचार्ज इज एप्लीकेबल 10%, जैसे हमने पिछले वाले में किया, वैसे ही यहाँ पर भी 10% का मैंडेटरी सरचार्ज एंड सेस तो है ही सही, दैट इज लेविएबल। Rate of tax on other income in respect of which no specific rate of tax is provided, we have discussed। BAA में ऐसा कोई कंडीशन ही नहीं है, तो 25 ही लगेगा। BAA की पूरी इनकम पे 25 ही लगेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन विच नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज, अगेन 25%, 25 in the sense 25.168% will be applicable. Conditions to be fulfilled availing concessional rate of tax. Now how do you claim that concessional rate of tax? So BAB में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने का एक डेट है। So the company should be registered on or after 1st of October 2019 and it should commence manufacturing of production of an article। क्या लिखा है? Commence। यहाँ पर ये नहीं लिखा it should complete the manufacturing। इसमें क्या लिखा है? It should be commencing the manufacturing activity or production of electricity etc. on or before 31st of March 2024। इसके पहले पहले आपने उसको कमेंस कर दिया है। द बिजनेस शुड नॉट बी फॉर्म बाय स्प्लिटिंग अप, रिकंस्ट्रक्शन, ये सबसे नहीं होना चाहिए, जैसे 35 AD में कंडीशन है। इट डज नॉट यूज एनी प्लांट एंड मशीनरी यूज फॉर प्रीवियसली यूज फॉर एनी पर्पस। सो पिछली बार मतलब सेकेंड हैंड बेसिकली यूज नहीं करती है, जो पहले यूज हो चुका है उसको यहाँ पर बेनिफिट नहीं मिलेगा उस असेट को। बिल्डिंग जो कि पहले कन्वेंशन सेंटर या ऐसा कुछ रह चुका है, अगर आप उसको अपने बिजनेस में ले रहे हो, नहीं बेनिफिट माना जाएगा। नॉट बी एंगेज इन एनी बिजनेस अदर देन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन। सो आपको एक ही बिजनेस करने का राइट है। एंड कौन से बिजनेसेस को यहाँ पर कवर नहीं किया गया है, वो स्पेसिफिकली लिस्ट दे रखी है कि ये जो सारी चीजें हैं ये आपके बिजनेस में इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि इसमें कोई आर्टिकल बन के या कोई प्रोडक्ट बन के बाहर नहीं आ रहा है। ये देखो क्या लिखा है ना। सो इसलिए ना कोई रिसर्च हो रही है। सो बेसिकली इन सारे केसेस में आपको 115 BAB अवेलेबल नहीं रहेगा। So these businesses will not be considered as a manufacture or production of any article. Apart from that, आप किसी और बिजनेस में एंगेज नहीं हो सकते हैं if you want to opt for provisions of section 115 BAB. So accordingly, they have listed that which businesses will be considered as manufacturing businesses, and accordingly you can claim the deduction. Now similar conditions are not prescribed in BAA because मोस्टली BAA इज अ जेनरिक सेक्शन, मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए नहीं लाया गया है। सो यहाँ पर ऐसे कोई टाइम लिमिट या कोई कंडीशन की मतलब मशीन वो होनी चाहिए आपके सेटअप हो जाना चाहिए, किस डेट वगैरह तक होना चाहिए, ये सारी कंडीशंस यहाँ पर प्रिस्क्राइब नहीं है। नाउ कॉमन कंडीशंस BAA BAB कौन से डिडक्शंस ब्लॉक्ड है, एज आई मेंशन दैट देयर आर सर्टेन डिडक्शंस व्हिच आर ब्लॉक्ड। 10AA एक्सपोर्ट प्रॉफिट 50% 100% वाला जो है आपका, दैट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। 32(1)(2)A, that is basically additional depreciation. So additional depreciation 20% will not be allowed of the actual cost जो मिलता है। लेकिन again if the particular assessee has installed such an asset, he has to calculate the normal depreciation। वो ध्यान रखना है कि normal depreciation मिलेगा, additional depreciation shall not be allowed। 33AB ABA आपका जो नाबार्ड टी कॉफी रबर डेवलपमेंट फंड एंड आपका we have the site restoration funds and all these all funds will be allowed if you invest in these funds, the deductions shall not be allowed in the ऑप्शनल रेजिम। सो रेगुलर रेजिम में ये सारे बेनिफिट्स अलाउड होते हैं, नॉर्मल रेजिम में ये सब अलाउड हैं, बट आपके 115 BAA BA में अलाउड नहीं है।
Payment to any research association, company, social scientific undertaking, etc. These are again not allowed block. तो आप किसी और इंस्टीट्यूशन को साइंटिफिक रिसर्च के लिए, नेशनल लेबोरेटरी, आईआईटी, इन सब के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इट इज नॉट अलाउड. In-house scientific research expenditure incurred by a company engaged in the business of biotechnology or in the business of manufacture or production of an article of thing. Again, in-house आप scientific research कर रहे हो और ये सब आपका condition है biotech वगैरह, not allowed as deduction. The deduction shall be blocked. Investment link deduction 35AD, 100% of capital expenditure which is allowed under 35AD shall be blocked. CCC, agricultural extension project, CCD, skill development project, all are blocked. 80C to 80U, very very important. So 80C से लेके U तक आपके जितने भी चैप्टर 6 से रिडक्शन है, all are blocked except for JJAA and M. So जो एम्प्लॉई वाला आपका बेनिफिट होता है, एम्प्लॉई जनरेशन वाला, दैट इज अलाउबल. एंड डिविडेंड डिडक्शन जो है 80M, दैट इज अलाउबल. बाकी 80IA, IB, ये सारे डिडक्शंस जो है वो ब्लॉक हो जाएंगे. सेट ऑफ लॉस, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा इन सब में से. अगर कोई पुराना आपका कैरी फॉरवर्ड लॉस है, जैसे 115BAB, तो चलो न्यू डोमेस्टिक कंपनीज के लिए है, तो पुरानी कंपनी ऑप्ट ही नहीं कर सकती. लेकिन 115BAA जो है वो तो एग्जिस्टिंग कंपनी भी कर सकती है. तो सपोज किसी कंपनी ने फर्स्ट ईयर तो नॉर्मल में रिटर्न भरा, लेकिन सेकेंड ईयर अब वो 115BAA ऑप्ट करना चाहती है, एंड यहाँ पर उसका कुछ एडिशनल डेप्रिसिएशन था विच वॉज लेस देन 180 डेज वाला केस, तो 20% में से 10% ही मिल पाया था. बैलेंस दिस अगले साल कैरी ओवर होने वाला था, लेकिन अब आप उसका डिडक्शन नहीं ले सकते बिकॉज नाउ यू हैव ऑप्टेड फॉर BAA इन द सब्सिक्वेंट ईयर. सो सच लॉस डेप्रिसिएशन रिलेटिंग टू दीज सेक्शंस व्हिच आर ब्लॉक्ड shall also be not allowed as set off or carry forward for the further assessment years. Additional points relevant for BAA. BAA में स्पेसिफिकली क्या बोला गया है? टोटल इनकम शुड बी कंप्यूटेड विदाउट सेट ऑफ एनी लॉस और कैरी फॉरवर्ड, जो हमने बात करी उसके बिना आपको डिडक्शन निकाल के रखना है. इन केस ऑफ यूनिट हैविंग यूनिट इन द यूनिट ऑफ IFSC, देन आपका जो 80LA सेक्शन होता है विच इज स्पेसिफिकली फॉर IFSC यूनिट्स. So in case of person having unit in IFSC referred to in 80LA, 80LA जो IFSC units की इनकम का डिडक्शन होता है, you can claim 80LA as well. तो for BAA अगर हम बात करें तो 3 सेक्शंस का डिडक्शन आपको अलाउबल हो गया, JJAA, M and LA. इसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा. कोई ऑप्शन नहीं है, कोई टाइम लिमिट के लिए कोई वो नहीं है. मैंने बताया था आपको कि कब तक ऑप्ट करना है. तो अब प्राय प्रैक्टिकली इसमें सजेशन ये दिया जाता है, जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ, कि सिर्फ सेक्शन याद रखना हमारा काम नहीं है, हमको उसको प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है, एसएससी को कैसे उसका फायदा लेना चाहिए, दैट वी शुड बी कंसिडरिंग. तो जैसे मैंने बोला लास्ट ईयर 180 डेज से कम था, इसलिए एडिशनल डेप्रिसिएशन 10% ही मिल पाया, बचा 10% इस साल मिलेगा. लेकिन अगर आपने BAA ऑप्ट कर लिया तो फिर ये ब्लॉक हो जाएगा. सो आइडियली व्हाट शुड बी डन, अगर कुछ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस या कुछ भी बेनिफिट्स हैं जो इन सेक्शन से रिलेटेड है, या अगर आपको लग रहा है कि कुछ मतलब बेनिफिट है जैसे एडिशनल डेप्रिसिएशन है जो आप इस साल ले सकते हो, तो फर्स्ट कंप्लीट देम, टेक ऑल द बेनिफिट्स, एंड देन आगे चल करके आप क्या कर सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो फॉर द ऑप्शनल रेजिम, दैट इज 115BA. लेकिन यहाँ पर एक चीज जरूर ध्यान रखनी है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा कि इसको डिफर करके जो टैक्स लायबिलिटी बढ़ रही है उसका अमाउंट, और आप जो एडिशनल बेनिफिट ले पा रहे हो क्योंकि आप BAA में नहीं जा रहे हो, वो दोनों को कंपेयर करके फिर उसका डिसीजन लेना पड़ेगा, है ना. सो अकॉर्डिंगली दिस इज एन ऑप्शन, दिस इज अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन कि अगर लॉसेस बचे हैं इन सेक्शन से रिलेटेड तो बेटर है पहले उनको एडजस्ट करके फिर ही जो है वो आप BAA एक्सरसाइज करो. नाउ if you do not fulfill the conditions, the option exercise shall be deemed to be invalid. Further, whenever you are opting for BAA or BAB, if it is opted once, it has to be followed for the subsequent years as well. So वो ऐसा नहीं कि हर साल कैलकुलेट करके देख रहे हैं, जिधर बेनिफिट है इधर चलो इस बार, इधर लॉस है तो ऐसा कर लेते हैं, इधर बेनिफिट है, ऐसा नहीं चलेगा. आप शांति से सोच लें. BAB तो आपको फर्स्ट ईयर में ही लेना होता है, फर्स्ट ईयर की 139 मंथ की ड्यू डेट के अंदर अंदर BAB ऑप्ट कर लेना पड़ेगा. अगर फर्स्ट ईयर में रह गया तो आपके पास BAA का ही ऑप्शन बचता है, BAA जेनरिक है. लेकिन BAA में भी ये चीज का ध्यान रखना है कि हमारा ऑप्शन एक बार अगर एक्सरसाइज हो गया तो वो सब्सिक्वेंट पीरियड के लिए वैलिड रहेगा.
मैट क्रेडिट, बॉट फॉरवर्ड मैट क्रेडिट का एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा वंस यू हैव ऑप्टेड। अगेन यहाँ पर हमने जैसे बोला कि इफ इट इज हैज मैट क्रेडिट इट कैन फर्स्ट यूटिलाइज एंड देन ऑप्ट फॉर 100 इन सब्सिक्वेंट ईयर, राइट। सिंस इट इज अ न्यू कंपनी देयर वुड बी नो ब्रॉट फॉरवर्ड मैट क्रेडिट, तो बीएबी में कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इन केस ऑफ बीएबी also there is a very important point to be considered कि क्लोज रिलेशंस में अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि जो कंपनी है वो मोर देन ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स कर रही है, बीएबी में रेट क्या है 15% है, तो अगर यहाँ पर आप प्रॉफिट बढ़ा दो और आपकी क्लोज रिलेटेड पार्टीज जो हैं उनके साथ आप ट्रांजैक्शन करके उन लोगों के एक्सपेंसेस बढ़ा दो, तो आइडियली होगा क्या, तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ेगा लेकिन तुमको हो सकता है कोई डिडक्शंस मिल रहे हो या फिर आपका जो टैक्स रेट है दैट इज अगेन लेस, सो यू मे क्लेम अ बेनिफिट कि चलो टैक्स कम लग रहा है तो इधर ज्यादा प्रॉफिट पार्क कर देते हैं, दैट विल बी लुक्ड अपॉन बाय असेसिंग ऑफिसर। बीएए में ऐसा कोई केस नहीं है, बट बीएबी में उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है। और अगर ऐसे में लगता है कि वो आर्म्स लेंथ प्राइस पर नहीं है, तो जो भी प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट डिटरमाइंड बाय द असेसिंग ऑफिसर शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द पर्सन। सो वेन एवर यू हैव कैलकुलेटेड, असेसिंग ऑफिसर को अगर लगता है कि यार ये तो एक्सेस प्रॉफिट्स अर्न हो रहे हैं, वो उसकी इनकम मान ली जाएगी। द इनकम ऑन सच इनकम टैक्स शैल बी एप्लीकेबल एट द रेट ऑफ 34.32%। सो हाईएस्ट रेट इसके ऊपर एप्लीकेबल रहेगा। ऑप्शन कब तक एक्सरसाइज करना है मैंने बताया आपको, कब आपके पास टाइम लिमिट है, और विद इन 5 ईयर विद इन अगर आपने उसको चेंज करना चाहोगे तो एक बार अगर बाहर आ जाओगे तो फिर से अंदर नहीं जा सकते, एक बार अंदर चले गए तो फिर हर साल ऐसे स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं कर सकते। इनके संबंध में बीएबी अमालगमेशन हो गया अगर मान लो, तो आपके अमालगमेटेड कंपनी के पास वैलिड रहेगा अगर सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो। नाउ वी डिस्कस्ड अर्लियर ऊपर कि प्रीवियसली यूज प्लांट एंड मशीनरी यूज नहीं करनी है, तो 35 AD जैसा ही यहाँ पर भी कंडीशन है कि किसको प्रीवियस यूज नहीं माना जाएगा। सो इफ इट इज नॉट यूज इन द एनी टाइम इन इंडिया, इंपोर्ट किया है और डेप्रिसिएशन का कोई भी डिडक्शन इंडिया में उसके ऊपर, या डेप्रिसिएशन का कोई भी डिडक्शन अंडर इनकम टैक्स एक्ट उसके ऊपर नहीं लिया गया है, तो फिर आप उसको न्यू ही मानोगे एक तरीके से, यू विल नॉट कंसिडर इट एज प्रीवियसली यूज। फर्दर 20% तक आप प्रीवियसली यूज मशीन यूज कर सकते हो। सो इफ इट इज not exceeding 20% of the total value of plant and machinery, then the condition does not have used machinery will be complied. So basically 20% तक आपका used machinery भी चलेगा. So these are the two alternative regimes you can opt in for BAA or BAB. Again एग्जामिनेशन में बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी, बस तो आपको हो सकता है कि हिंट दी हुई हो क्वेश्चन में, जैसे लिखा है कि द assessee is not under the MAT provisions या कुछ भी ऐसा मेंशन किया है, अकॉर्डिंगली आपको दोनों तरीके से सॉल्व करके देखना पड़ेगा। अगर नहीं लिखा है तो आप अज्यूम करके लिख सकते हो कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा है, बट देयर विल बी सम काइंड ऑफ हिंट एंड अकॉर्डिंगली आपको कंप्यूट करना है। तो जब आप रेगुलर इनकम कैलकुलेट कर रहे हो 25 या 30% से, तो मैट भी चेक करना है कि मैट तो नहीं लग रहा। अगर बीएबी में हो तो मैट वैसे ही अप्लीकेबल नहीं है। whatever the provisions are there accordingly you will adjust the income, तो जो भी आपकी इनकम है उसमें ये सारे डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, तो ये अगर माइनस करके रखा है ऐड बैक करो, इनकम निकालो, बीएबी के अकॉर्डिंग जो टैक्स की रेट है वो अप्लाई करो, एंड अकॉर्डिंगली आपको हर साल उसको ऑप्ट इन करना पड़ेगा। वंस यू ऑप्ट इन फॉर देम you cannot come out and you cannot, MAT will not be applicable to that particular assessee. So these are the provisions of alternative tax regimes. Go through it so that you're able to solve the questions, and in the next part we will be discussing MAT. तो आपको तीनों चीजों का अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, फिर एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके देख लेंगे जिसमें हमको आइडियली समझ आएगा कि करना कैसे होता है, राइट। सो एज सच ओल्ड और न्यू में फर्क सिर्फ इतना है कि जो डिडक्शंस है वो सारे ब्लॉक कर दिए हैं इन द न्यू रेजिम। सो व्हेनेवर यू आर कैलकुलेटिंग कीप इन माइंड कौन से डिडक्शंस अलाउड और कौन से ब्लॉक हो गए हैं इन द A11 पे BAA एंड BAP. So BAA normal provisions, BAB manufacturing, and accordingly you can calculate the income using these provisions. So go through these sections, revise them, and if you have any issues, any doubts, feel free to discuss.